when it comes to Canada's permanent immigration targets and aligning them to our economic needs, I'm here to announce and confirm that the current plan reduces next year's projections from 500,000 permanent residents to 395,000, a net reduction of 105,000 permanent residents immediately in 2025. After that, in 2026, a progression down to 380 to stabilize the numbers at 365 in 2027. Consistent with our plan, over 40% of permanent residents will come from the temporary residents that are already in Canada. These people are a young labour pool, they're skilled, they're here, they've begun their process of integration, and it doesn't place the additional demands on the housing, healthcare, and social services that we see with someone that comes directly from another country. Today, we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in over the next 3 years, which will result in a pause in the population growth over the next 2 years. With the plan we're announcing today, along with previously announced measures, we're making our immigration system work better. Far too many corporations have chosen to abuse our temporary measures, exploiting foreign workers while refusing to hire Canadians for a fair wage. All while, under the watch of provinces, some colleges and universities are bringing in more international students than communities can accommodate, treating them as an expendable means to line their own pockets. That's unacceptable, and it needs to change. Businesses should no longer rely on cheap foreign labor. My message to them is that there is no better time to hire and invest in Canadian workers. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार इतनी सारी पॉलिसीज आती जा रही है, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगते जा रहे हैं, चाहे वो स्टडी हो, विजिटर हो, टूरिस्ट हो, स्पाउस हो, चाहे वो डायरेक्ट पीआर पाथवे के रिगार्डिंग हो, और बड़ा टाइप हो, बिजनेस टेक्नो पाथवे, ईआईपी के रिगार्डिंग हो, डबल आर स्ट्रीम के रिगार्डिंग हो, इवन स्टडी परमिट में भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। पहले 7 लाख था, अब 4,85,000 हो गया, अब 2025 के अंदर 4,37,000 हो जाएगा, 10% लेस है 2024 के मुकाबले। और मास्टर स्ट्रीम्स को, ट्रेड स्ट्रीम्स को, हेल्थ केयर पे ही फोकस किया जा रहा है। अगर कोई बच्चा सिंपल सा कोर्स भी लेना चाहता है, ह्यूमन रिसोर्स का, मैनेजमेंट का, XYZ कोई भी कोर्स लेना चाहता है सिंपल सा, और सब पढ़ने का इच्छा नहीं है, तो उसमें भी चांसेस बहुत कम है कि आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज तो वैसे ही बैन कर दिया गया है, दैट मीन्स उन्हें वर्क परमिट तो वैसे नहीं मिलेगा, तो कभी प्राइवेट कॉलेज में मत जाना। सो आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो होता है कि मैं इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करूंगा अपने ऊपर, तो मुझे उसका रिटर्न मिलेगा अभी या नहीं मिलेगा, क्योंकि कनाडा के हालात इतने बुरे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी जॉब्स के रिगार्डिंग भी। एंड इफ यू डोंट हैव अ स्किल्स, रिमेंबर वन थिंग, इफ यू डोंट हैव अ स्किल्स, if you don't have a references, if you're not adjustable, it would be very difficult for you to survive in Canada in the current situation. But remember one thing, अगर आपको कनाडा का PR चाहिए and if you have a CEC experience, that means Canadian experience class, तभी पॉसिबिलिटी है। आपको लगे मैं अपने घर बैठे बैठे फॉरेन कंट्री से अप्लाई कर लूँगा, मैं स्कोर, मैं LMI के पॉइंट्स ऐड कर लूँगा 50 या 200 और मेरे को PR मिल जाएगा, बहुत मुश्किल है अगर आपके पास CEC का एक्सपीरियंस नहीं है। लास्ट 2.5 ईयर्स में सिर्फ 2 बार फॉरेन ड्रॉ हुए हैं, जो एक 5 दिन पहले और एक इन द मंथ ऑफ जनवरी में हुए हैं। सो गेटिंग अ PR इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सीधा बात करता हूँ, जो भी पॉलिसी चेंज की गई है और जो कट किया गया है एप्लीकेंट्स में PR के रिगार्डिंग, उससे पहले मैं आपको एक टेम्परेरी रेजिडेंट के रिगार्डिंग एक बताना चाहूँगा। इवन दिस द फर्स्ट टाइम इन कैनेडियन हिस्ट्री कि टेम्परेरी रेजिडेंट को कम किया जा रहा है, बिकॉज टेम्परेरी रेजिडेंट बहुत ज़्यादा हो गई है कनाडा के अंदर, बहुत ज़्यादा हो गया है। Canada to cut new immigrants level plan by nearly 1 lakh, और उन्होंने प्लान किया कि 2025 के अंदर 30,000 टेम्पररी रेजिडेंट कम हो गई और उन्हें कम किया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट विल सेट अ ऑफिशियल टारगेट फॉर टेम्पररी रेजिडेंट विद द प्लान टू रिड्यूस टेम्पररी रेजिडेंट्स एप्लीकेशन बाय नियरली 30,000 इन 2025 बाय जस्ट ओवर 3 लाख, मीन्स 3 लाख को भी दिया जाएगा। इवन LMI, लो वेज LMI में भी 10% कोटा है, और जो भी हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन या स्किल बेस में आते हैं उनके अंदर, और जितनी भी LMI मिल रही है वो मीडियम वेज और हाई वेज वाली LMI मिल रही है टिल 2025 28 फरवरी तक। उसके बाद तो वैसे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर जाना है तो अभी जाओ, अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट इन टू द कैनेडा। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, स्पाउस वीजा या LMI के रिगार्डिंग, just DM me on this number on WhatsApp और Instagram, I will definitely help you out. एंड दूसरी बात करता हूँ मैं आपको PR के रिगार्डिंग। देखो यार 2024, 2025, 2026 में ना कैनेडा गवर्नमेंट का एक प्लान था कि 2024 के अंदर 4,85,000 सीट्स होगी इन टर्म्स ऑफ PR लोगों को दिया जाएगा 2024 के अंदर। 2025-26 में 5 लाख ईच ईयर होगा।
बट उस चीज़ को रिवाइज कर दिया गया है और जो पीआर एप्लीकेशन हैं जिनको पीआर दिया जाएगा 2024 में, 25 में, 26 को उसे रिवाइज किया गया है और उसे चेंज कर दिया गया है। सो नंबर्स डाउन हो गए हैं एंड कंपटीशन काफ़ी ऑलरेडी इंक्रीज है और ऑलरेडी और भी इंक्रीज हो चुका है। तो चांसेस आर वेरी लेस, चांसेस आर फॉर दोस्त जिनका स्कोर 500 से ऊपर जा रहा है और जिनके पास सी का एक्सपीरियंस है या हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है, ट्रेड का एक्सपीरियंस है। अगर आपको पीआर के रिगार्डिंग बात करूँ तो दिस इज 2024 में था 4,85,000 एंड 2025-26 में था 5 लाख ईच। जो रिवाइज इमिग्रेशन टारगेट हुआ है और डिक्रीज हुआ है 3,80,000 2026 के अंदर, 3,65,000 2027 के अंदर और एटलीस्ट 90,000 ड्रॉप कर दिया गया है 2025 के अंदर। दैट मीन्स 90,000 इंडिविजुअल्स इन ड्रॉप इन 2025 विच इज 3,95,000 आउट ऑफ 4,85,000। 2024 के अंदर 4,85,000 था, उसे कम करके 3,95,000 कर दिया गया है और ऐसे 2025 में भी रिवाइज किया है, 2026 में भी रिवाइज किया है। सो गेटिंग इनटू द कैनेडियन पीआर पाथवे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, बट आई वुड टेल यू वन वेरी फ्रैंकली, अगर किसी के माइंड में है कि मेरे को कनाडा जाना ही जाना है और मुझे पीआर लेना ही लेना है, दिस इज द एग्जैक्टली द राइट टाइम और बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट भी वैसे गिरने वाली है, गिरी जाएगी कि जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं एंड पीपल आर नॉट हैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट। So 99.9% this government will be down and will be stepped down और दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी और जो दूसरी अपोजिट गवर्नमेंट है दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट इमिग्रेशन, सॉरी दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन, दे आर नॉट अगेंस्ट, सॉरी दे आर अगेंस्ट नॉट इन फेवर ऑफ इमिग्रेशन, दे जस्ट वांट दोज पीपल जो मक्खन है, दैट मीन्स हेल्थ केयर, स्किल बेस्ड, इंजीनियर्स, लॉयर, ट्रेड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, उनको बस वैसे ही लोग चाहिए जिनके अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी क्वालिफिकेशन है और जो इकोनॉमी में हेल्प करेंगे। एट द एंड जस्टिन ट्रूडो ने एक ट्वीट भी किया था टू मेक कैनेडियन सिटीजन हैप्पी। आई जस्ट वांट कि आप एक ट्वीट पढ़ो एंड यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट इज गोइंग राइट नाउ एंड किस हिसाब से पॉलिसीज को चेंज किया जा रहा है। और जिस लोगों के माइंड में है कि मुझे कनाडा आना है, चाहे वो वर्क परमिट पर, स्टडी वीजा में हो, बिल्कुल आओ, बट मेक श्योर लर्न स्किल्स, have talent, be adjustable, make your profile strong, see your CRS score going good. First choose the right province, right industry and अगर आप स्टडी वीजा पे जाते हो तो चूज द राइट कोर्स जो इन डिमांड में है। आई जस्ट वांट कि आप पहले ट्वीट देखो एंड यू विल गेट एन आइडिया इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट एंड यू विल गेट एन आइडिया कि क्या चल रहा है कनाडा में। We are going to have fewer temporary foreign workers in Canada. We are bringing in stricter rules for companies to prove why they can't hire Canadian worker first. That means जितनी भी कंपनीज है वो पहले चेक करेंगे कि वो कैनेडियंस को क्यों नहीं हायर कर सकते, क्या उनमें चीज़ें हैं जो उनको कमी दिख रही है, क्या उनको लग रहा है कि वैसे उनके पास स्किल्स नहीं है जिससे उनको फॉरेन वर्कर्स को हायर करना पड़ रहा है। देखो फॉरेन वर्कर्स में की डिमांड कनाडा में अभी भी है, पहले भी थी और बाद में भी होगी। मैं आपको हमेशा की चीज़ बोलता हूँ, सिंपल सी जॉब, रिटेल, कैशियर, फूड काउंटर अटेंडेंट बहुत ही यूजलेस जॉब है, इसमें तो भूल जाओ, कभी मत जाना है लम्हे पे। अगर जाना भी है ट्रेड में जाओ, CNC में जाओ, मशीन ऑपरेटर में जाओ, प्लम्बर, मैकेनिक, डिज़ाइनिंग में जाओ, हेल्थ केयर में जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, हेल्थ केयर में, लैब टेक्नीशियन हो, नर्स हो, मेडिकल में, कोई भी फील्ड हो, इट विल वर्क in terms of LMI also, it will work in terms of work permit also, it will work in terms of PR also। चाहे आपकी एज थोड़ी अप एंड डाउन हो रही है, मीन्स बहुत ज़्यादा एज है, 40 है, 40 है, थोड़ी मुश्किल होगी टू गेट इनटू द PNP और एक्सप्रेस एंट्री। बट अगर आपकी एज बिटवीन 25 या 20 से लेके 35 के बीच में, चांसेस आर वेरी हाई फॉर यू टू गेट इनटू द PR पाथवे और आराम से PR मिलेगा इफ़ यू हैव अ CEC एक्सपीरियंस। सो वीडियो में पेंड करता हूँ, तब तक गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग लेट मी नो द कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना और कोई भी माइंड में क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप पे DM करना है एंड इंस्टाग्राम पे DM करना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तब तक के लिए गुड बाय।